Dear students, good morning. Today we are going to discuss fifth lesson of our geography book, Natural Vegetation and Wildlife. In this particular chapter, we would study about different types of vegetations and which particular type of animals and birds are found in these type of forest. Dear students, you are observing different type of trees or grass or birds in fields and parks which are located around your school. बेटा आप पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि देर आर ए लॉट ऑफ वेरिएशंस इन देम. यू नो दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. और फिर आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि थ्रू आउट द कंट्री देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफार्म्स. In world there are 12 mega biodiversity and India is among one of them. In India 47,000 species of plants are found and India is having the fourth rank in Asia in terms of plant species. In India 15,000 flowering plants means those plants which are grown for the flower purpose and it is the 6% of the total world flowering plants. Next, India is having 90,000 species of animals and India is having different species of fish which are found in the fresh water and as well as in salt water. Likewise, India is also having algae, fungi and ferns. बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन. तो बेटा ये प्लांट कम्युनिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन without any help of human beings and the plants which are not disturbed by the human beings for a long time are known as the natural vegetation or you can say virgin vegetation. बेटा virgin vegetation वो virgin vegetation जो प्योरली इंडिया में थी उसको एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज कहते हैं एंड वो वर्जिन वेजिटेशन जो अदर कंट्रीज से इंडिया में आकर और आज पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एक्जोटिक. बेटा नेचुरल वेजिटेशन इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द एंडेमिक, सेकंड वन इज द एक्जोटिक. बेटा एंडेमिक वो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स विच आर ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, आज चाहे वो किसी भी कंट्री में पाए जाए. एंड एक्जोटिक दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन इंडिया बट अर्लियर दे वर originated in other countries. अब आएगा what is flora and fauna. बेटा flora represents the plants of a particular region of a particular period while fauna represents the species of animals of a particular region of a particular period. It means what is flora and fauna? The different types of plants and animals of a particular region. In India different type of flora and fauna is found. First, land. Beta, you know that land directly affects the natural vegetation and indirectly it also affects. You know that same type plants are not found in mountainous or the plateau region or in the plain regions or in the dry and wet regions. आप जानते हैं कि types of plants or vegetation are affected by the different type of land. हम ये भी जानते हैं कि द फर्टाइल द लेवल लैंड इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. अब जो रफ अनइवन जो लैंड है अनडिल्यूटेड उबड़ खाबड़ जो रफ लैंड है दैट इज डिवोटेड टू ग्रास लैंड्स और डिवोटेड टू वुड लैंड जहाँ पे वेराइटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं. सेकेंड सॉइल. सर व्हाट इज सॉइल? टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल. डिफरेंट टाइप सॉइल सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. सैंडी सॉइल और द डेजर्ट सॉइल support the cactus or the thorny plants, while the wet or the marshy or the deltoic soil support the deltoic vegetation or the mangrove vegetation. Likewise, the soil that is found on the hilly regions, it has the conical type trees. In conical type trees, the trees are found in a particular shape. इनकी जो leaves हैं वो नीचे की तरफ होती हैं. क्लाइमेट में टेम्परेचर बेटा the vegetation, the character of vegetation, the expansion of vegetation is determined by the temperature along with humidity or moisture in atmosphere along with rainfall or different type of rainfall and soil.
बेटा हिमालयाज में और पेनिनसुला में 1900 पेनिनसुलर इंडिया में बेटा 1915 मीटर से अबव यू नो दैट टेम्परेचर जब गिरने लगता है तो सेम प्लेस पे ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट टू एल्पाइन टाइप वेजिटेशन पाई जाती है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन कर रखा है कि ट्रॉपिकल टाइप वेजिटेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, सब ट्रॉपिकल के लिए कितना, इस टेबल को लेटर एक्सप्लेन करेंगे। अब होता है फोटो पीरियड मीन सनलाइट ड्यूरेशन। बेटा आप जानते हैं कि डिफरेंट लैटिट्यूड डिफरेंट एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू सीजन अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ डे जो सनलाइट ड्यूरेशन वो इफेक्ट होता है। यू नो दैट समर में गर्मियों में ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ डे लार्ज ड्यूरेशन ऑफ डे एंड ड्यू टू सीजन बेटा आप देखेंगे जो ट्रीज है वो फास्ट ग्रो करते हैं। फिर फाइंड आउट में देखेंगे कि वाई आर द साउथर्न स्लोप्स इन हिमालयाज की जो साउथर्न स्लोप्स हैं वो नॉर्दर्न स्लोप्स की बजाय क्यों ज़्यादा कवर्ड है। तो साउथर्न स्लोप्स बेटा गेट द मोर रेनफॉल इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्दर्न स्लोप्स, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश। अब बारिश ज़्यादा है तो ट्रीज ज़्यादा है। अब प्रेसिपिटेशन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल। आप जानते हैं इंडिया में ज़्यादातर रेनफॉल प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़े एडवांसिंग मानसून अर्थात साउथ वेस्ट मानसूनी विंड से आता है जो कि जनरली 4 मंथ्स जून टू सितंबर ही होता है। देन नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी रेनफॉल होती है, इट मीन्स रिट्रीटिंग मानसून लौटते हुए मानसून से भी होती है। बेटा जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है उन एरियाज में लेस रेनफॉल की बजाय ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप्स में ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है, ज़्यादा थिक फॉरेस्ट क्यों होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न स्लोप्स। तो यहाँ भी है वेस्टर्न स्लोप्स बेटा रेन वियरिंग विंड्स की साइड में आते हैं। यहाँ पे बेटा रेन वियरिंग साइड है, विंडवर्ड साइड है, और विंडवर्ड साइड में एक माउंटेन में एक हिल में ज़्यादा रेनफॉल होती है और लीवर्ड साइड में कम, इसीलिए ज़्यादा बारिश है वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप्स में। तो यहाँ पे बेटा थिक फॉरेस्ट है ईस्टर्न स्लोप्स की तुलना। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ये बेटा इन्वायरमेंट की क्वालिटी बढ़ाते हैं, पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, टेम्परेचर को हाई और लो नहीं जाने देते। थ्रू दियर रूट्स बेटा ये सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं, सॉइल को अपनी ग्रिप के द्वारा पकड़ के रखते हैं। रिवर्स की वाटर फ्लो को रूट्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जैसे पेपर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री। बेटा किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पैनोरामिक और सीनिक ब्यूटी को बढ़ाते हैं, रिक्रिएशन के काम आती हैं। बेटा ट्रीज विंड फोर्स को रोकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ट्रीज रेनफॉल कैरी करने में मदद होते हैं। ये डिफरेंट टाइप सॉइल को ह्यूमस कंटेंट, ट्रीज की लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स की नष्ट होने के बाद में सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है इसमें बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, और बिफोर इंडिपेंडेंस में बड़े चेंजेस आए। क्यों? बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज ब्रॉट अंडर कल्टिवेटेड लैंड। इसी प्रकार आप देखेंगे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण, माइनिंग के कारण बड़ा लॉस हुआ है। बड़ा वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड जनरली इन जुलाई, इन फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। बेटा इन वन महोत्सव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज आर ग्रोन। अब हम आगे पढ़ेंगे द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया। बेटा यदि देखें तो नेचुरल नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पहुँचना संभव नहीं, इनएसेसिबल रीजन लाइक द हिमालयाज रीजन, लाइक द हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया या मरुस्थली और डेजर्ट एरिया, यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल सकती है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट सर्वे इंडिया के टोटल लैंड में से 21.05% एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, जबकि आप प्रीवियस किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 33% ये ऐसा होना चाहिए। प्लांट कवर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप। अब आपने पढ़ा होगा प्लांट अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स में कम्युनिटीज में पाया जाता है। द नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया काफ़ी हद तक वहाँ के एनिमल्स को डिसाइड करता है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और ऑल द एनिमल्स कैन नॉट ईट द लीफ और द अदर पार्ट्स ऑफ द सेम ट्री। एक ही पेड़ की
पत्तों को, लीफ को सभी एनिमल्स नहीं खा सकते। जैसे अपने गोट है, सिप है, कैमल है, ये थोरने उस चीज़ को खाते हैं, बट बुफेलो इसको नहीं खाते। इस प्रकार जब वेजिटेशन एल्टर होता है, चेंज होता है, तो ऑटोमेटिक एनिमल लाइफ भी चेंज होता है। इस प्रकार सो एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड आर इंटर रिलेटेड। फिर आप पढ़ेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट किस प्रकार इसमें रोल प्ले करता है। ह्यूमन बींग्स भी इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमन बींग्स ने भी किसी एरिया का इकोलॉजी को प्रभावित किया है। अब आप देखिए, ड्यू टू द ग्रीडी नेचर, लालची स्वभाव हमारे ह्यूमन बींग्स का है, जिसके कारण हमने इन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया। वी हैव कट डाउन ए लॉट ऑफ ट्रीज, वी हैव किल्ड ए लॉट ऑफ एनिमल्स, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, जिसके कारण बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स बेटा ऑन द बैंक ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स वे कभी भी लुप्त हो सकते हैं, डिसअपियर हो सकते हैं, इफ द नेगेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोल। अब आप आगे पढ़ेंगे व्हाट इज बियोम। बट ए लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिफरेंट टाइप और डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बियोम। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। बेटा इन इंडिया 5 टाइप वेजिटेशन आर फाउंड। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मोंटेनी फॉरेस्ट, एंड लास्ट वन मैनग्रोव फॉरेस्ट और द टाइडल फॉरेस्ट। अब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे। इसमें 4-5 थिंग्स नेसेसरी हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर देर इज हैवी रेनफॉल और द एरियाज वेयर देर इज एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, और ये रेनफॉल इंटरवल्स में होनी चाहिए, टुकड़ों में बटी हुई होनी चाहिए। अर्थात फर्स्ट फीचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कि द एरिया मस्ट हैव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल distributed at a regular interval. Second feature of tropical evergreen forest is the trees which are found in tropical evergreen forest, their height is minimum 60 meters. Third, these forests are found in the areas where throughout the year the weather is warm and wet. Fourth, the trees in the tropical evergreen forest are found in different ways, like the trees, like the shrubs, like the creepers, latai. Next, the tropical evergreen forest does not have the definite type to shed the leaves. इसलिए इसमें जो डिफरेंट टाइप ट्रीज हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ लीफ ड्रॉप नहीं करते, वो अलग अलग टाइम पे ड्रॉप करते हैं, इसलिए थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन नज़र आता है। कुछ इसमें पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, ये वो ट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे वन हॉर्न राइनासोर ऑफ असम और वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट, इनका अनोदर नेम मॉनसून फॉरेस्ट भी है। बेटा दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। बेटा ये ट्रीज एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रखते हैं, 6 to 8 वीक में ये सभी अपनी लीफ ड्रॉप कर देते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए on the basis of availability of water or rain. Beta, one is the dry deciduous forest and another is the moist deciduous forest. Beta, dry deciduous, moist deciduous forest वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे हिमालयाज के इर्द गिर्द, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह। बेटा मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो इम्पोर्टेंट ट्रीज है वो टीक है, बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये हैं। ड्राई से डेसिडियस फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 100 to 70 सेंटीमीटर्स है। इसके इम्पोर्टेंट ट्रीज जैसे दोनों में टीक है, ये इनमें इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं टीक, जैसे आपने ड्राई में भी देखा और मोइस्ट में देखा, टीक दोनों में। फिर साल, पीपल, नीम। नेक्स्ट आप पाएंगे थॉर्न्स फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर देयर इज रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। बेटा ये
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे सम पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। यहाँ पे पाए जाने वाले ट्रीज में जैसे अकासिया, जिसे बबूल का पेड़ कहते हैं, पाम ट्री वगैरह पाए जाते हैं। ये ट्रीज दूर दूर फैले होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, डेंस नहीं होते। इनकी रूट्स बहुत गहरी गई होती हैं, पेनिट्रेट होती हैं डीप अर्थ में, सो दैट दे कैन गेट मॉइस्चर। इनका जो स्टेम्प होता है वो स्कूलेंट होता है, बीच में खोखला होता है ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। इन ट्रीज की जो लीव्स हैं वो थिक होती हैं और स्मॉल होती हैं ताकि इवापोरेशन को मिनिमाइज कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, we would study the remaining part in the next video.